नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की अहम खबरें क्या रही ये देखेंगे इस बुलेटिन में, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। बार एसोसिएशन के चुनाव 17 दिसंबर को प्रस्तावित, उम्मीदवारी दर्ज करवाने के आखिरी दिन कई बड़े एडवोकेटों ने दर्ज करवाया नामांकन। जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार चौथे दिन जारी, काली पट्टी बांधकर गोत्री अस्पताल के परिसर में आयोजित की रैली। महाराष्ट्रीयन समाज में खंडोबा भगवान की माता माल साकांत के साथ आज हुई शादी, समाज के लोग बड़ी तादाद में रहे उपस्थित। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बार एसोसिएशन के चुनाव 17 दिसंबर को प्रस्तावित है, जिसे लेकर आज बार एसोसिएशन कमेटी की ओर से अलग अलग जगहों के लिए अपना नामांकन दर्ज करवाया गया। बार एसोसिएशन के चुनाव से जुड़ी हर तैयारियों को शुरू करवा दिया गया है, जिसके चलते उम्मीदवारी फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। उसके तहत आज वकील नलिन पटेल की ओर से प्रमुख पद के लिए अपना नामांकन दर्ज करवाया गया है। इसके साथ ही ईशा मांडानी की ओर से एलआर के तौर पर अपना नामांकन दर्ज करवाया गया है, जबकि हर्षद परमार की ओर से कमेटी मेंबर के तौर पर अपना नामांकन दर्ज करवा दिया गया है। ऐसे में आज इनके समर्थकों की ओर से भी इनकी जीत की खुशी जताते हुए फॉर्म भरने की खुशी मनाई गई और इस मौके पर उपस्थित बीसीसी मेंबर रंजीत चौहान की ओर से भी इनकी जीत की कामना की गई। ઇલેક્શન 17/12/2021 રોજ યોજનાર છે બરોડા બાર એસોસિએશનનું. એની સાથે સાથે સમગ્ર ગુજરાતમાં ઇલેક્શન યોજનાર છે. 1 બાર 1 વોટ અને એમેન્ડમેન્ટ એક્ટ 2015 હેઠળ, બરાબર. ઘણા લાંબા સમય પછી, એટલે દરેક સમગ્ર ગુજરાતમાં 2 વર્ષ પછી ઇલેક્શન થઈ રહ્યું છે. કેમ કે ગઈ વખત કોવિડ-19ના લીધે જે તકલીફ થઈ રહી અને જે કોર્ટો બંધ હતી, લોકડાઉન હતું અને આવા અનેક કારણોસર આ બધું બંધ હતું, ત્યારે 2 વર્ષના ગાળા પછી આ ઇલેક્શન થવા જઈ રહ્યું છે. 2 વર્ષ પછી વકીલો અને તમામ કોર્ટો ગુજરાતની બિલકુલ ચાલુ થઈ ગઈ છે. કોર્ટો બિલકુલ જ્યુડિશિયલ ફંક્શન બધું વ્યવસ્થિત થઈ ગયું છે. ત્યારે ઇલેક્શન બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતે સમગ્ર ગુજરાતને 17/12/21 રોજ યોજવા આપ્યું. ત્યારે બરોડા બાર એસોસિએશનનું પણ ઇલેક્શન થાય છે. સમગ્ર ગુજરાતમાં ઇલેક્શન થાય છે, પણ બરોડા બાર એસોસિએશનનું જે ઇલેક્શન થાય છે એ ખૂબ જ એક આગવું હોય છે. કારણ કે વડોદરાના વકીલો આને ઉત્સવ તરીકે મનાવે છે, ઇલેક્શન તરીકે નથી લેતા. ત્યારે વડોદરાના તમામ જુનિયર અને સિનિયર વકીલોને હું અપીલ કરીશ અને સાથે સાથે શુભેચ્છા પણ આપીશ કે આ આપણું ઇલેક્શનને એક જોરદાર એવો મહોત્સવ બનાવો કે સમગ્ર ગુજરાતીઓની નોંધ લે અને વકીલો ખૂબ જ મનમેળથી, પ્રેમભાવથી, કોઈપણ જાતની ઈર્ષ્યા વગર અને કોઈપણ જાતના રાગદ્વેષ કે દુશ્મનાવટ વગર ઇલેક્શનને એ રીતે લે અને આખું વાતાવરણ હળવું કરી દે અને વડોદરા વકીલ મંડળની જે એકતા છે એનું પ્રદર્શન કરે અને એ રીતે આગળ વધે અને આવનાર તમામ ઇલેક્શનમાં જે જીતનાર ઉમેદવારો હોય એમને અત્યારે જે લડી રહ્યા છે એમને શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. અને બાકીના જે જીતીને પછી આવે ત્યારે આ વડોદરા વકીલ મંડળમાં જે પડતર પ્રશ્નો છે, ઘણા પ્રશ્નો છે, એ અત્યારે એને બિલકુલ ફાયર બ્રાન્ડ પ્રશ્નો છે, પણ અત્યારે એને કહીએ એનો કોઈ અર્થ નહીં. પણ એ તમામ ભેગા મળીને અને વડોદરા વકીલ મંડળના સિનિયર સભ્યો છે, આદરણીય સિનિયર સભ્યો છે, એ લોકોને સાથે લઈને વડોદરા વકીલ મંડળનું એક આગવું જે નામ હતું, સમગ્ર ગુજરાતમાં એક આગવી છાપ હતી અને જે એકતા હતી એ ફરીથી પ્રસ્થાપિત કરે એવી સૌને અપીલ કરું છું. બરોડા બાર એસોસિએશનની 2021-22ની ચૂંટણી 17 ડિસેમ્બરે યોજવામાં આવેલી છે. એમાં પ્રમુખ પદના હોદ્દા માટે મેં ઉમેદવારી આજે નોંધાવેલી છે. આજે મેં મારું ફોર્મ ભર્યું છે અને એની સ્ક્રુટિની પણ થશે અને કાલે વિડ્રોવલનો છેલ્લી તારીખ છે. મારે વકીલ મંડળના પ્રમુખ તરીકે જે મેં ઉમેદવારી કરી છે, હું એટલું જ કહીશ કે આ ચૂંટણીમાં તમે તમામ વકીલ મિત્રો મારા ફેવરમાં તમારો અમૂલ્ય મત આપી મને વિજયી બનાવો. મને એટલે કે નલિન પટેલને મત આપવો એટલે જુનિયર વકીલોના ફ્યુચરને મત આપવો. નલિન પટેલને મત આપવો એટલે જુનિયર સિનિયર ધારાશાસ્ત્રીઓના માન સન્માનને મત આપવો, એટલો મારો મંત્ર છે અને એને ધ્યાનમાં રાખીને હું કામ કરીશ એવું તમામ સૌ મારા વકીલ મિત્રોને હું વિનંતી કરું છું કે આ મતદાનમાં તમે જંગી મતદાન કરો અને મારા ફેવરમાં મતદાન કરો કે જેથી મારે જે જુનિયર વકીલો અને સિનિયર વકીલોના માટે જે કંઈ કામ કરવું છે હું કરી શકું. શું કહેશો ખાસ જે વકીલોના જે બેઠક વ્યવસ્થાને આ લઈને બધા મુદ્દાઓ છે અને શું કહેશો?
માત્ર બેઠક વ્યવસ્થા જ પ્રશ્ન નથી, ઘણા બધા પ્રશ્નો છે અને એનું તમામનું કોઈને કોઈ રીતે એનું નિરાકરણ લાવવા માટે જે છેલ્લા ઘણા ટાઈમથી પ્રયત્નો નથી થયા એને વેગવંતા બનાવીને એનું નિરાકરણ કરવાનું એ મારું પહેલું કામ હશે. આજે મેં વડોદરા વકીલ મંડળની ચૂંટણીમાં LR માટેનું લેડીઝ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ માટેનું ફોર્મ ભર્યું છે. બસ આગામી મારું એવું જ છે કે આપણે મહિલાઓ માટે કાયમી જે મહિલાઓના પ્રશ્નો હશે એને હું સમજીશ, વાંચીશ અને પ્લસ એના ઉપર જે મારાથી બનતા પ્રયત્ન હું એને ઉકેલ કરવાનો કરીશ. અને અત્યારે તો મહિલા સશક્તિકરણ બધે જ ચાલે છે એટલે હું કોર્ટમાં પણ મહિલાઓને સમાન હક ને બધું મળે એ માટે પૂરો પ્રયત્ન કરીશ. तमिलनाडु के कुन्नूर में कल जो हेलीकॉप्टर क्रैश होने का हादसा हुआ उसमें CDS बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका और अन्य 12 लोगों की जान चली गई, जिसके चलते इस वक्त पूरा देश CDS बिपिन रावत और इन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है. ऐसे में प्रतापनगर इलाके में मौजूद वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन ऑफिस के कर्मचारियों की ओर से भी आज CDS बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करने के कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जिसके तहत सेक्रेटरी संजय पवार, संतोष पवार और एम्प्लॉय यूनियन के सभी कर्मचारियों ने CDS बिपिन रावत की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी. आज वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन द्वारा આપણે બિપિન રાવત જે આપણા ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ હતા એમનું એક દુર્ઘટનામાં મૃત્યુ થયું છે અને એમની સાથે એમના પત્ની અને જે આપણા સૈનિકો બીજા એમની સાથે દુર્ઘટનામાં આજે સદગતિ પામેલા છે. તો વેસ્ટર્ન રેલવે એમ્પ્લોઈઝ યુનિયને આજે એમના માટે એક શ્રદ્ધાંજલિ કાર્યક્રમ આયોજિત કર્યો છે. કેમ કે આજની તારીખે જો આપણે અહીંયા શાંતિથી કામ કરી શકતા હોય અને એક શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ આપણને આપવા માટે આપણી આર્મીનો સૌથી મોટો રોલ રહ્યો છે. તો એ લોકો દેશની સુરક્ષા માટે લડતા હોઈએ છે, જેના હિસાબે આપણે અહીંયા શાંતિથી બેસી રહ્યા હોય છે, શાંતિથી આપણું કામ કરી શકીએ છીએ. એટલા માટે વેસ્ટર્ન રેલવે એમ્પ્લોઈઝ યુનિયને પોતાની જવાબદારી સમજીને આજે આ શ્રદ્ધાંજલિ કાર્યક્રમનું આયોજન કરેલું છે. जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स की ओर से बीते कई वक्त से नीट PG काउंसलिंग और भर्ती प्रक्रिया को तेज बनाने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. दरअसल पैन इंडिया की हड़ताल को समर्थन देते हुए ये सभी रेसिडेंट डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी ये मांग है कि जल्द से जल्द नीट PG काउंसलिंग और भर्ती प्रक्रिया को तेज कर दिया जाए, जिससे कि आने वाले मुश्किल दौर में उनके ऊपर काम का बोझ कम रहे. ऐसे में आज लगातार चौथे दिन गोत्री अस्पताल के रेसिडेंट डॉक्टर्स की ओर से इस मामले में काली पट्टी धारण कर विरोध प्रदर्शन करते हुए पोस्टर बैनर लेकर सभी ने कैंपस में रैली निकाली और रैली निकालते हुए इन सभी डॉक्टर्स की ओर से विरोध प्रदर्शित किया गया. काउंसलिंग को रोका है, हमारे साथ रोका है. काउंसलिंग को रोका है, हमारे साथ रोका है. काउंसलिंग को रोका है, हमारे साथ रोका है. We want justice. GMERS ગોત્રી હોસ્પિટલમાં સેકન્ડ યર રેઝિડન્ટ ડૉક્ટર્સ છીએ અને અમે આજે ત્રીજો દિવસ છે અમે પ્રોટેસ્ટ કરી રહ્યા છીએ. કાલથી અમે ઇમરજન્સી સેવાઓ પણ બંધ કરી છે, પરંતુ GMERS ગોત્રી હોસ્પિટલમાં કોઈ ઇમરજન્સી વિભાગ બંધ નથી, કેમ કે અમારા સિનિયર ડૉક્ટર્સ અને પ્રોફેસર્સ ઇમરજન્સી પેશન્ટને જોઈ રહ્યા છે. પરંતુ અમારી પાસે હવે આ પોઈન્ટ પર કોઈ ઓપ્શન રહ્યો નથી, કેમ કે નીટ PG કાઉન્સેલિંગ અનનેસેસરીલી ડિલે થઈ રહી છે રિઝર્વેશનના ઇશ્યુઝને લીધે. તો અમારી બસ સરકારને એ જ માંગ છે કે તમે બને એટલું વહેલું નીટ PGમાં ડૉક્ટર્સની ભરતી કરો, જેથી 33% ડૉક્ટર્સની જે અછત સર્જાઈ છે, જેને લીધે પેશન્ટની ક્વોલિટી ઓફ કેર પર અસર થઈ રહી છે, એ ના થાય. ભવિષ્યમાં જો કોવિડ આવી જાય તો એ સમયે તાત્કાલિક ધોરણે કોઈકને કોઈક સહાય મળી રહે. એટલા ઓછા ડૉક્ટરમાં ફરીથી કોવિડનો સામનો કરવો બહુ જ મુશ્કેલ છે. અમે અત્યારે લગભગ અમારા થર્ડ યર રેઝિડન્ટ ડૉક્ટર્સ એક્ઝામને કારણે રજા પર છે. ફર્સ્ટ યર બેચ આવી નથી, એટલે એક ડૉક્ટર અત્યારે 3 ડૉક્ટરનું કામ કરી રહ્યું છે.
સૌથી વધારે અસર તો ઇમરજન્સી બ્રાન્ચ પર થઈ રહી છે અને એની સાથે કોવિડ ડ્યુટી પણ લાગી રહી છે. नेशनल युवा कॉरपोरेट सोसाइटी लिमिटेड की ओर से अपने 23 साल पूरे होने के जश्न को कल तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हादसे के चलते शहीदों को श्रद्धांजलि देकर मनाया गया. नेशनल युवा कॉरपोरेट सोसाइटी लिमिटेड ने 23 साल पूरे कर लिए हैं, जिसका जश्न इस सोसाइटी की ओर से मनाया जाने वाला था. लेकिन कल तमिलनाडु में जो हेलीकॉप्टर क्रैश का हादसा हुआ उसमें कई लोग शहीद हो गए, जिसके चलते नेशनल युवा कॉरपोरेट सोसाइटी लिमिटेड की ओर से इस साल 23 साल पूरे होने के जश्न को मनाते हुए इन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई. इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर भूतपूर्व सांसद राम सिंह राठवा, पूर्व डिप्टी मेयर जीवराज चौहान उपस्थित रहे थे. सभी की ओर से शहीदों के लिए 2 मिनट का मौन रखकर कार्यक्रम की शुरुआत करवाई गई. नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसाइटी का आज स्थापना दिवस है, लेकिन दुर्भाग्य से कल देश में एक बहुत बड़ा हानि हुआ और जनरल बिपिन रावत जी और उनके सारे साथी का जो कल आकस्मिक देहांत हुआ है, तो आज हमने उस कार्यक्रम का थोड़ा टोन बदला है. लेकिन नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसाइटी ये देश का एकमात्र ऐसा संस्था है कि जो मल्टी स्टेट है, मल्टीपर्पज़ है और पूरे देश में 600 से ज़्यादा जिलों में काम कर रहा है. हमारी संस्था का उद्देश्य है कि एम्पावरिंग यूथ, पावरिंग नेशन. देश के युवाओं को सक्षम बनाना तो देश समर्थ बनेगा. हम खेल में काम कर रहे हैं, हम कृषि में काम कर रहे हैं, हम माइक्रो फाइनेंस में काम कर रहे हैं, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में स्किल में काम कर रहे हैं. ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं जिसमें युवाओं को मौका देने का कोशिश कर रहे हैं. शायद आज़ादी के बाद इस प्रकार का काम करने वाला ये एकमात्र संस्था होगा, ऐसा मुझे लगता है. આજે નેશનલ યુવા કોઓપરેટિવનો સ્થાપના દિવસ છે. આપણે આજે એને ઉજવવાના હતા, પરંતુ જે ગઈકાલે દુઃખદ ઘટના બની એને કારણે આપણે એ કાર્યક્રમ રદ કર્યો છે અને આજે એમને દિવ્ય આત્માઓને શ્રદ્ધાંજલિ આપવાનો કાર્યક્રમ કર્યો છે. અને જે કંઈ અમારા સદસ્યો આવ્યા છે અને થોડી ટેકનિકલ માહિતી આપી અને આ કાર્યક્રમ આપણે અહીંયા સમાપ્ત કરવાના છે. કયામાં વર્ષમાં આજે 23મો સ્થાપના દિવસ છે નેશનલ યુવા કોઓપરેટિવમાં. એમાં વડોદરા બ્રાન્ચમાં 25 સપ્ટેમ્બર 2018માં વડોદરામાં બ્રાન્ચ શરૂ કરી છે અને હું એનો ચેરમેન છું. અહીંયા લગભગ અમે 1 કરોડ અને 3 લાખ જેટલી ડિપોઝિટ કલેક્ટ કરી છે. એમાંથી 46 લોકોને અમે લોન આપી છે. અમે પર્સનલ લોન આપીએ છીએ, 1 લાખ, 2 લાખ, 1.5 લાખ, 3 લાખ, કે જેને કોઈ લોન નથી આપતું એવા લોકોને અમે અહીંયા લોન આપીએ છીએ. હાલ અમારી પાસે 70 lakhs ડિપોઝિટ છે, એમાંથી 50 lakhs ડિપોઝિટ અમે પરત આપીએ છીએ. 7.5 થી 8% જેટલું ડિપોઝિટ ઉપર અમે વ્યાજ આપીએ છીએ. અને મારા જેવા બધા યુવાનો, ગરીબો, રેકડીવાળા, આવા મધ્યમ વર્ગના લોકોને મોટે ભાગે અમે લોન આપીએ છીએ. शहर के सांसद रंजनबेन भट्ट की ओर से लोकसभा में शहर के निवासियों के कई मुद्दों को साझा किया जाता है. शहर के निवासियों की हर दिक्कत को साझा करते हुए सांसद रंजनबेन भट्ट लोकसभा में कई मुद्दे उठाते हैं. ऐसे में कोरोना काल से पहले वडोदरा के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर से जयपुर, इंदौर और पुणे की विमानी सेवाएं कार्यरत थी, जो कोरोना काल के दौरान बंद कर दी गई. अब इन्हीं सेवाओं को वापस शुरू करवाने के मामले में सांसद रंजनबेन भट्ट की ओर से लोकसभा में बात रखी गई. धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया. माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके सम्मानीय माध्यम से श्री नागर विमानन मंत्री से अनुरोध करना चाहती हूँ कि मेरे लोकसभा मत क्षेत्र वडोदरा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वडोदरा एयरपोर्ट कार्यरत है, जिससे वडोदरा एयरपोर्ट पर कोरोना महामारी के समय से पहले मुंबई, दिल्ली, जयपुर, इंदौर, बेंगलुरु की फ़्लाइट कार्यरत थी, जिसमें से अभी जयपुर, इंदौर, पुणे की फ़्लाइट कार्यरत नहीं है. वडोदरा जिला के आसपास के 9 से 10 जिले के नागरिक वडोदरा एयरपोर्ट से हवाई उड़ान की सेवा का लाभ लेते थे. एवं वडोदरा मध्य गुजरात में उद्योग, वाणिज्य और व्यापार की दृष्टि से प्रमुख शहर है.
वडोदरा के आसपास के सभी जिले के नागरिकों को जयपुर, इंदौर और पुणे शहर की मुसाफरी करने के लिए फ़िलहाल अहमदाबाद जाना पड़ता है। अगर उक्त फ्लाइट कार्यरत कर दी जाए तो इसका लाभ वडोदरा एवं आसपास के सभी जिले के नागरिकों को मिल सकेगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपके सम्मानीय माध्यम से मैं माननीय नागर विमान मंत्री से अनुरोध करना चाहती हूँ कि मेरे संसदीय मत क्षेत्र वडोदरा स्थित वडोदरा एयरपोर्ट से इंदौर, पुणे और जयपुर की फ्लाइट को पुनः संचालित करने की कृपा करें। धन्यवाद। बार काउंसिल के चुनाव 17 दिसंबर को प्रस्तावित है, जिसे लेकर उम्मीदवारी फॉर्म भरने की प्रक्रिया का आज अंतिम दिन था। ऐसे में आज मैनेजिंग कमेटी के सदस्य के तौर पर रविराज गायकवाड़ ने अपना नामांकन दर्ज करवाया। મારું નામ રવિરાજ ગાયકવાડ છે અને હું મેનેજિંગ કમિટીના પોસ્ટ માટે ઇલેક્શનમાં મારી ઉમેદવારી નોંધી છે। ઘણા બધા ઇશ્યુઝ જે છે હવે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે આખા કોર્ટમાં તમે જોશો તો વોશરૂમ્સ જે ક્લીન નથી એ બી અમે લોકો આ મુદ્દો અમે લોકો રિપ્રેઝેન્ટ કરીશું। એવા ઘણા બધા જે મુદ્દાઓ છે એ મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં રાખીને આ વખતે હું મેનેજિંગ કમિટીના ઇલેક્શનમાં મારું નોંધણી કરી છે। લાસ્ટ યર 2018-19માં જ્યારે હું ઇલેક્શન જીત્યો હતો એના પછી બી જ્યારે કોઈ ડિરેક્ટરનું પ્રોબ્લેમ હતો એ ડિરેક્ટરનો અમે લોકોએ ઇશ્યુ રિઝોલ્વ કર્યો હતો। જે ટેબલનું જે એલોટમેન્ટ હતું એ બધા જ ટેબલનું એલોટમેન્ટ અમે લોકોએ કર્યું હતું। એવા ઘણા બધા આઈ કાર્ડ હતા એડવોકેટના એ બી કામો કર્યા હતા। એવા દરેક બધા પોઝિટિવ કામમાં હાજરી પુરાવીને અમે લોકોએ કામ કર્યા હતા। એ જ જે રીતે 2018-19માં બધા વકીલશ્રીઓ જુનિયર અને સિનિયરો મારા પર જે વિશ્વાસ મૂક્યો હતો એ જ વિશ્વાસ આ વર્ષે બી મૂકશે એવી એમની બધા પાસેથી આશા। राजकोट में देवजिंग इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड और आदित्य कॉरपोरेशन नाम की 2 पेटियां है। कल वहां पर चोरी की वारदात हुई। दरअसल चोरों की ओर से दोनों ऑफिसों के ताले तोड़कर लाखों की चोरी को अंजाम दिया गया। हालांकि इस मामले में पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है, लेकिन अब तक चोरों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। शहर के खोडियार नगर इलाके में महेश रावल नाम के शख्स रहते हैं, जिनकी पत्नी पल्लवी निकम उनके दोनों बच्चों के साथ इस वक्त कहीं पर फरार हो गई है। दरअसल शैलेश निकम का ये आरोप है कि एक शख्स तुषार रावल उनके दोनों बच्चे और पत्नी को लेकर कहीं पर चले गए हैं। ऐसे में तुषार रावल के ऊपर शैलेश निकम की ओर से अपहरण का आरोप लगाया जा रहा है, जिसके चलते आज उन्होंने पुलिस कमिश्नर को आवेदन पत्र देकर इस मामले में जल्द से जल्द तहकीकात पूरी कर कड़े कदम उठाने की मांग की है। इसके साथ ही इस घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रहे हैं, जिसमें तुषार रावल पल्लवी निकम और उनके दोनों बच्चों को लेकर रिक्शा में कहीं जा रहा होने की बात नजर आ रही है। હવે 26 તારીખના મારી વાઈફ પલ્લવી નિકમ એ મારા બેઉ ટ્વિન્સ બાળકોને લઈને ઘરેથી તુષાર રાવળના નામના શખ્સ સાથે ઘરે આવીને એ લોકો લઈ ગયા છે મારી વાઈફને મારા છોકરાઓને। એ બાબતે અમે બાપોદ પોલીસ સ્ટેશનમાં બી કમ્પ્લેન કરી 26 તારીખના, પણ ત્યાંથી પણ સંતોષ એટલે આમ જેવું જોઈએ એવું ઝડપી કામ થતું નથી, એટલે આજે સીપી સરને અમે રજૂઆત કરવા આવેલા છે। એ અપહરણ કરીને ઘરેથી લઈ ગયા છે, સ્પષ્ટ દેખાય છે સીસીટીવી ફૂટેજમાં। ઘરે રિક્ષા લઈને આવે છે અને રિક્ષામાં બેસાડીને મારા છોકરાઓને મારા વાઈફને ઘરેથી બેસાડીને લઈ ગયા છે। એ સંબંધ એટલે કંઈ એ લોકોને કંઈ પ્રેમ સંબંધ જેવું કંઈ લાગે છે, એ રીતે જતા રહ્યા છે ઘરેથી। મારી માંગ એવી છે કે મારા જલ્દીમાં જલ્દી મારા છોકરાઓ મને પાછા મળી જાય। खबरों के बीच वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। BRG ग्रुप
ब्रेक के बाद BRG न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्रियन समाज के भगवान खंडोबा की शादी माता महल साकांत के साथ आज आयोजित है, जिसके चलते महाराष्ट्रियन समाज की ओर से एक हफ्ते पहले से ही सभी विधियों की शुरुआत कर दी गई थी। दरअसल महाराष्ट्रियन समाज की ओर से इस पर्व को बड़े ही धामधूम से मनाया जाता है और उसी के तहत आज भगवान खंडोबा की बारात निकली, जिसका भव्य तौर पर स्वागत पोलाई माता के मंदिर पर किया गया। ये बारात पोलाई माता मंदिर पर पहुंची, जहां पर माता महल साकांत के साथ खंडोबा भगवान की शादी हुई। इस मौके पर शहर के राजवी परिवार की भी उपस्थिति रही और साथ ही महाराष्ट्रियन समाज के लोग भी बड़ी तादाद में उपस्थित रहे। મલ્હાર ચંપાષષ્ઠી નિમિત્તે બોલાઈ માતા મંદિરથી ભગવાન ખંડોબાની પાલખી નીકળે છે। આ પાલખી ખંડોબા આરવી દેસાઈ સ્થિત ખંડોબા મંદિરમાં જાય છે। ત્યાં સાંજે અહીંયા 5 સવા 5 અહીંથી પાલખી નીકળે છે, 7 સવા 7 ત્યાં પહોંચે છે। ત્યાં બધે રાજવી પરિવાર ત્યાં ઉપસ્થિત હોય છે। રાજવી પરિવાર આ લગ્નમાં હાજરી આપે છે અને એમના હસ્તે આ લગ્ન મહોત્સવ સંપૂર્ણ થાય છે। અંદાજે આ 100 વર્ષ પૂર્વની પ્રણાલી છે અને એ મુજબ આ ચાલી રહ્યું છે। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश का एक नया वीडियो इस वक्त सामने आया है, जो क्रैश के पहले का होने की बात इस वक्त बताई जा रही है। दरअसल नीलगिरी के जंगलों में से एक टूरिस्ट ने अपने मोबाइल से इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था, जिसमें ये दिखाई पड़ रहा है कि हेलीकॉप्टर कोहरे के बीच काफ़ी नीचे उड़ रहा है। वैसे वीडियो कुछ ही सेकंड्स का है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि इन कुछ ही सेकंड्स के बाद हेलीकॉप्टर पेड़ से टकरा गया था। वैसे वीडियो में काफ़ी कोहरान नज़र आ रहा है, जिससे ये बात तो साबित हो रही है कि जब ये दुर्घटना घटी तब हवामान काफ़ी ख़राब था और विजिबिलिटी भी काफ़ी कम थी। वैसे हेलीकॉप्टर इतना नीचे क्यों उड़ रहा था, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। माता सीता के स्वयंवर की शर्त के मुताबिक भगवान श्री राम ने शिव धनुष तोड़कर माता सीता के साथ विवाह रचाया था और ये दिन माक्षर सुद पंचमी का दिन था। तभी से हर साल माक्षर सुद पंचमी के दिन माता सीता और भगवान श्री राम का विवाह करवाया जाता है। ऐसे में आज माक्षर सुद पंचमी है, जिसके चलते शहर के राम सीता मंदिर पर तुलसी राम विवाह का आयोजन किया गया। इस मौके पर वार्ड नंबर 14 के काउंसिलर स्मिता पटेल और उनके पति नितिन पटेल की भी उपस्थिति रही और उन्हीं की ओर से इस विवाह को संपन्न करवाया गया। वैसे इस मौके पर बड़ी तादाद में भक्त भी उपस्थित रहे और सभी की ओर से धामधूम से राम तुलसी विवाह का आयोजन संपन्न करवाया गया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। સીતારામ મંદિર મદન જાપા રોડ હનુમાન પડિયાના નાકે વર્ષોથી પરંપરા રહી છે કે દરેક જે તુલસી વિવાહ હોય છે
એ આપણા દેવ દિવાળીમાં થાય છે, પણ આ જે રામ વિવાહ એટલે કે તુલસી વિવાહ થાય છે એ માગસર સુદ પાંચમના દિવસે, એટલે ઓરિજિનલ જ્યારે સીતા માતાને પહેલી વાર જ્યારે હાર ચડાયો હતો બાણ તોડીને ભગવાને, ત્યારે આ નીતિ હતી. એટલે ઓરિજિનલ આ તિથિ પ્રમાણે આજે અહીં ગાડી વર્ષોથી પરંપરાથી આ વિવાહ થાય છે. વિવાહનો યજમાન થવાનો અમને લાભ મળ્યો છે, એટલે ખૂબ જ હર્ષ અને ઉલ્લાસથી અને આ પ્રોગ્રામ કરીએ છીએ. કેટલાય ભક્તો અહીંયા ગાડી આવે છે અને ખૂબ સારી રીતે ભક્તિ ભજન 2 દિવસથી મહિલા મંડળ ભજન કરે છે. અહીંના ટ્રસ્ટીઓ આટલા વખતથી જે વિવાહ કરાવે છે એમનો પણ ખૂબ જ યોગદાન છે. આ વખતે અમને જે લાભો મળ્યો છે એ બદલ ટ્રસ્ટીઓનો અને શ્રી રામ ભગવાનનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ કે એકદમ જ 2 વર્ષ જે લોકડાઉનના સમયે જે આ કાર્ય ના થઈ શક્યું, એ શુભ કાર્યનો અમને આ જે મોકો મળ્યો છે તે બદલ સૌનો, મંદિરના ટ્રસ્ટીઓનો, મહિલા મંડળ જે ભજન કરે છે એમનો, આજુબાજુના રહીશોનો અને જેટલા બી ભાવિ ભક્તોનો છે એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. અને આવો ને આવો આ ઉત્સાહ ભર્યો જે તહેવાર છે અને ભગવાનનો વિવાહ છે, રામ વિવાહ છે, એ ભવિષ્યમાં બી આવી રીતે સારો થતો રહે. અને સરકારના નિયમો મુજબ આ વખતે વરઘોડો કે એવું કંઈ કાઢ્યું નથી, કારણ કે ફરી પાછું આ વેવ આવે એના કરતાં ભગવાનને ટ્રસ્ટીઓના કહેવાથી સાદાઈથી આપણે આ રામ વિવાહ સંપન્ન કરવા જઈ રહ્યા છે. અને હવે હસ્તમેળાપમાં અમે જઈ રહ્યા છીએ અને શુભ કાર્ય અહીંથી શરૂઆત થાય છે. આપના માધ્યમથી દરેક વડોદરાવાસીઓને એમને શુભકામના અને ભગવાનના આશીર્વાદ દરેક વડોદરાવાસીઓને, ગુજરાત રાજ્ય અને ભારત દેશને મળે અને એવા કોરોના જેવા કોઈપણ જાતના એવા કોઈપણ જે खतरनाक बीमारी थी अपना देशवासियों बचे ये भी प्रभु ने प्रार्थना। बीसीसीआई की ओर से मकरपुरा जीआईडीसी में एक सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसके तहत बीसीसीआई के अधिकारियों की ओर से विभिन्न योजनाओं के लाभ लोगों तक पहुंचाए गए। बीसीसीआई और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से बीसीसीआई ऑडिटोरियम जीआईडीसी मकरपुरा पर एक सेमिनार आयोजित किया गया था। दरअसल बीसीसीआई की कई योजनाएं हैं और इन योजनाओं के लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए इस सेमिनार को आयोजित किया गया था, जिसके तहत कई लोगों की उपस्थिति रही थी। वैसे आपको बता दें कि इस मौके पर आरपीएफसी 1 के मनोज कुमार यादव और आरपीएफसी 2 के शोभित श्रृंगल विशेष तौर पर उपस्थित रहे थे। वैसे इस सेमिनार के तहत प्रोविडेंट फंड सब्सक्राइबर्स के हित में ई नॉमिनेशन, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पोर्टल और प्रयास पर जोर दिया गया। आप लोगों के माध्यम से हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और एक इन्फॉर्मेशन शेयरिंग किया था कि हम लोग ई नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं और ई नॉमिनेशन का डिटेल्स में चर्चा की थी कि ई नॉमिनेशन क्यों कराना चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं। ये सारी मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और न्यूज़पेपर्स में कवर किया गया था बहुत अच्छे से। मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने बहुत अच्छी कवरेज दी, लोगों तक इस मैसेज को पहुँचाया कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है उनके लिए कि वो ई नॉमिनेशन करें और अपनी फैमिली को सिक्योर करें। प्रोविडेंट फंड का पैसा, ताकि उनके उनको कुछ भी होता है तो उनकी फैमिली को तुरंत बिना किसी परेशानी के उनको मिल सके, उनको पेंशन मिल सके और उनको इंश्योरेंस मिल सके। तो उसी दिशा में मैं बीसीसीआई ने हमें रिक्वेस्ट किया कि हम उनके साथ मिलकर एक कार्यक्रम करें और हम ग्रेटफुल हैं उनके कि एक मौका मिला हमें आज उनके साथ जितनी यहाँ की इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनके HR हेड्स या उनके ओनर्स यहाँ आएंगे और उनके साथ मिलकर हम ई नॉमिनेशन के ऊपर चर्चा करेंगे। ई नॉमिनेशन की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बात करेंगे और ई नॉमिनेशन क्यों कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए और उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है अगर करा रहे हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपने ठीक बोला, 3 महीने पहले हमने शुरू किया था और कुछ बड़ी कंपनियों ने इनिशियली इसको शुरुआत की। धीरे धीरे ये छोटी छोटी इस्टेब्लिशमेंट भी शुरू कर रही हैं। इसमें 30-32 हज़ार ई नॉमिनेशन हमारे हो चुके थे और लगभग 6-7 हज़ार उसमें और ऐड हो गए हैं। तो हम लगभग 40 हज़ार ई नॉमिनेशन अब तक कर चुके हैं और हमें 5,72,000 ई नॉमिनेशंस करने हैं, जो कि लाइव मेंबर्स हमारे वडोदरा जोन में हैं। ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं सभी से कि 31 दिसंबर को टाइमलाइन माने। ये अच्छा काम है और इसको जितना जल्दी कर सकें उतना जल्दी करें। ये 3rd वेव का या कोरोना का कोई फिर से कोई दिक्कत ना हो। मान लीजिए किसी एक्सीडेंट में भी किसी वर्कर की डेथ होती है तो उसको जितना जल्दी हो सके हम ये सुविधाएं दें बिना बाधा के। तो इसलिए आवश्यक है कि जल्दी से जल्दी ई नॉमिनेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि जितने भी वर्कर्स हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट है, डेली वेजेस है या आप 2 दिन के लिए हायर कर रहे हैं, तो भी इंश्योर करिए कि वो PF कॉन्ट्रैक्टर हो, जो एनरोल्ड हो PF में और उसका ई नॉमिनेशन हुआ।
कोई नया आदमी आप हायर कर रहे हैं तो बाकी चीज़ें आप उसकी मांगते हैं, जैसे आधार या पैन कार्ड मांगते हैं, तो आप उसका उसी समय ई नॉमिनेशन भी करवाएं। तो हमारा टाइम फ्रेम ये है कि हम 31 तक कोशिश करेंगे कि हम करें, 31 दिसंबर तक। और बाकी अगर समस्याएं आती हैं, कोई दिक्कत होती है तो उसको थोड़ा सा समय और दिया जाएगा। टेक्निकल दिक्कतें हो सकता है आ रही हों या स्पीड स्लो हो रही हो, वो सारी चीज़ें, इसलिए हमने एक फीडबैक सा भी एक सेशन होगा यहाँ पे जिसमें हम देखेंगे कि लोग कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, क्यों ये इतना स्लो क्यों हो रहा है, ये भी जानेंगे। और जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है कि करना है ई नॉमिनेशन, और उसके साथ साथ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पोर्टल है एक हमारा, उसके बारे में जानकारी देंगे। और एक नई जो हम स्कीम यहाँ पे हमारे है कि जिस दिन आपने रिटायर हो रहा है उसी दिन उसको पेंशन देने वाली स्कीम है, जिसके बारे में कम लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ हर महीने 15 से 20 ऐसे एम्प्लॉई हैं जिनका रिटायरमेंट है उसी महीने, 31 या 30 तारीख को रिटायरमेंट होता है, उसी दिन हम उनको पेंशन का पेमेंट ऑर्डर हाथ में देते हैं। तो इसके लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं कंपनी को। तो और हर आदमी को अच्छा लगता है कि रिटायरमेंट वाले दिन उसको पेंशन मिल जाए, उसको पीएफ ऑफिस ना जाना पड़े या उसको 2-3 महीने का वेट ना करना पड़े। तो ये प्रयास स्कीम है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पोर्टल एक हमारे यहाँ बना हुआ है जिसमें कि जो कंपनी है वो और जो उसके कॉन्ट्रैक्टर्स, उसने मान लिया 10 कॉन्ट्रैक्टर्स हायर किए हुए हैं, वो दोनों अपना एंटर कर सकते हैं कि मैं इस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्टर उसमें हमारे उसमें जाके अपना डालेगा कि ये पीएफ नंबर है इस कंपनी का और मेरा पीएफ नंबर ये है, मैं इस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ। और वैसे ही जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, यानी कि जो बड़ी कंपनी है जिसने हायर किया हुआ है, वो भी बताएगी कि मैंने ये 10-12 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनको मैंने हायर किया हुआ है और उनके इतने एम्प्लॉयज़ हैं। तो इससे क्या होगा, इसकी चेकिंग होगी ऐसी कि आपको भी पता रहेगा कि वो प्रोविडेंट फंड भर रहा है कि नहीं भर रहा है, और हमारे को भी पता रहेगा डिपार्टमेंट को कि उनका बिना बाधा के, बिना किसी प्रॉब्लम के हर महीने हम चेक कर पाएंगे कि उनका पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है वर्कर्स का। मान लीजिए वो कॉन्ट्रैक्टर कहीं डिफ़ॉल्ट करता है तो वो आपको परेशानी ना हो, हम उसको ट्रैक कर सकें, हम उसको पकड़ सकें। तो ये 2-3 चीज़ों के बारे में हम लोग आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे। हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे और यही मान के चलेंगे कि ई नॉमिनेशन को ज़ोर शोर से शुरू किया जाए, क्योंकि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ई नॉमिनेशन। और प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ई नॉमिनेशन इस साल करवाएं और बचे हुए लोगों का हम अगले साल की शुरुआत तक करवा लिया जाए, ताकि 75वें साल में आज़ादी के हम ये कह सकें कि जितने वर्कर्स हैं हमारे और जितने ईपीएफ के सब्सक्राइबर हैं, हमने उनको सबको, उनकी फैमिली को सिक्योर किया है, सबका ई नॉमिनेशन फाइल करवा दिया है। जूनागढ़ में जवाहर नवोदय विद्यालय मौजूद है, जहां पर जगह की कमी की वजह से ऑफलाइन क्लासेस शुरू नहीं हो पा रहे हैं। दरअसल जूनागढ़ में कई क्लासेस की ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करवा दी गई है, लेकिन इस विद्यालय में जगह की जो कमी है उसके चलते अब तक 6ठी से 9वीं कक्षा के छात्रों की ऑफलाइन पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई है, जिसके चलते आज इस स्कूल के छात्र के अभिभावक कलेक्टर के पास पहुंचे और उनकी ओर से कलेक्टर को आवेदन पत्र देकर यहां पर जगह मुहैया करवाने की मांग की गई। दरअसल ऑफलाइन क्लासेस शुरू ना होने की वजह से छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। ये छात्र ऑनलाइन ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं। ऐसे में आज सभी अभिभावकों ने कलेक्टर को आवेदन पत्र देकर यहाँ पर जगह मुहैया करवाने की मांग की है। મારું નામ છે કુંદનબેન બિપિનભાઈ વૈષ્ણવ, બરવાડા ગામ, તાલુકો મેંદેડા, જિલ્લો જુનાગઢ. બરાબર. મારો છોકરો જવાહર નવોદયમાં સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરે છે. હવે જગ્યાની અગવડતાએ અત્યારે છોકરાઓનું શિક્ષણ અટક્યું છે અને ઓનલાઈન જ ચાલુ છે, જેમાં છોકરાઓ વ્યવસ્થિત શિક્ષણ લઈ નથી શકતા અને એની આડઅસર પડે છે, એનું ભાવિ બગડે છે. એટલા માટે અમે કલેક્ટર સાહેબને રજૂઆત કરવા માટે આવ્યા છીએ કે અમારા છોકરા વ્યવસ્થિત ભણી શકે અને એને યોગ્ય જગ્યા મતલબ મળે અને યોગ્ય જગ્યા ફાળવે અને છોકરાનું શિક્ષણ આગળ વધારે, એ રિક્વેસ્ટ માટે અત્યારે અમે કલેક્ટર સાહેબને। नर्मदा जिला के देडियापाड़ा के गारदा समेत आसपास के कई गांवों में बीते कई वक्त से एक तेंदुए ने आतंक मचा रखा है। दरअसल तेंदुए के चलते अब तक 15 जितने जानवरों की जान जा चुकी है। इस तेंदुए ने 15 जितने जानवरों की जान ले ली है। ऐसे में गारदा समेत आसपास के कई गांवों के निवासी काफ़ी परेशान हैं और इस तेंदुए की वजह से काफ़ी डर में भी जी रहे हैं। ऐसे में स्थानीयों की ओर से इस वक्त ये मांग की जा रही है कि तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया जाए, जिससे कि आगे कोई भी बड़ा हादसा ना हो।
મારું નામ નટવરભાઈ મણીલાલ વસાવા, મુકામ ગાદા, તાલુકા ડેડિયાપાડા, જિલ્લો નર્મદાના રહીશ હું છું. આજ રોજ સવારે 5 વાગે ગાયનું દૂધ કાઢવા માટે મેં આવ્યો હતો. મારા ઢોરો ખેતરે રહી છે, મારું કાચું કોટર છે, ત્યાં મારા ઢોરો બાંધું છું. અને સવારે આવતા મેં બેટરી છાપવાથી મેં જંગલી પ્રાણી ચિત્તો એને મારા વાછડીનો પ્રહાર કરીને એને મારી ખાતા મેં નજરે જોઈ લો અને મેં બેટરી છાપતા એ પશુ એ દીપડો ભાગી ગયો એવું મેં નજરે જોયું છે. અને એ જાણતા મેં ગામ લોકોને મેં જાણ કરી, ફોનથી જાણ કરી, ફોરેસ્ટ ખાતાને જાણ કરી છે અને ગામના આગેવાનોને જાણ કરી છે. અને અમારા આ અગાઉ મહિનામાં લગભગ ગાળદા ગામમાં ઓછામાં ઓછા 8 થી 10 કેસ બનેલા છે. અને આ જંગલી પ્રાણી અમારા ગામના આજુબાજુ બહુ ત્રાસ કરે છે. અને એને કાબૂમાં લાવવા માટે, એને પકડવા માટે વન વિભાગ તરફથી કાયદેસર પગલાં લે એવી हमारी नम्र विनंती है। ग्राम पंचायत के चुनाव 19 दिसंबर को प्रस्तावित है, जिसे लेकर जगह जगह पर बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में राजपीपला में भी परामर्श बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कई बड़े चुनाव अधिकारियों की उपस्थिति रही। राज्य चुनाव आयोग गांधीनगर की ओर से ग्राम पंचायत के चुनाव आयोजित किए जाने वाले हैं, जिसके चलते जगह जगह पर बैठकें आयोजित कर चुनाव से जुड़ी हर ज़रूरी चीज़ें मुहैया करवाने के बारे में चर्चाएं की जा रही है। ऐसे में राजपीपला में भी अधिकारी HK व्यास की अगुवाई में कलेक्टर कचहरी पर आज परामर्श बैठक का आयोजन किया गया था। इस परामर्श बैठक के तहत कई बड़े अधिकारियों की उपस्थिति में चुनाव अच्छे तरीके से संपन्न हो, इसके लिए कई बड़े मुद्दों पर चर्चाएं की गई और साथ ही सभी अधिकारियों को जरूरी मार्गदर्शन भी मुहैया करवाया गया। ग्राम पंचायत सामान्य चूंटणी निरीक्षक तरीके आज नर्मदा जिल्लो अने त्यार पछी तापी जिल्लानी मुलाकात लेवानी छे। आजे नर्मदा जिल्लानी अंदर कलेक्टर साहेब अने जिल्ला चूंटणी अधिकारी श्रीनी मुलाकात करी, त्यारबाद प्रांत कक्षाए तमाम अधिकारी श्रीओ साथे चर्चा परामर्श करी अने चूंटणी विषयक बाबतों अने मुद्दाओं विषे विगतवार छणावट करी। त्यार पछी कलेक्टर कक्षाए पण तमाम राजकीय प्रतिनिधिओ साथे एक संकलन बैठकनुं आयोजन पण कर्युं અને સંકલન બેઠકના અંતે તમામને કોઈપણ પ્રકારની મુશ્કેલી, કોઈ પ્રકારની ચૂંટણી અંગે કોઈ રજૂઆત હોય તો એ પણ કરવા માટે જણાવવામાં આવ્યું। જુદા જુદા જે મતદાન મથકો છે એની મુલાકાત કરી, મતદાન મથકોની અંદર પ્રાથમિક સુવિધાઓ અને તમામ સુવિધાઓ ચકાસી। खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बार एसोसिएशन के चुनाव 17 दिसंबर को प्रस्तावित, उम्मीदवारी दर्ज करवाने के आखिरी दिन कई बड़े एडवोकेटों ने दर्ज करवाया नामांकन। जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार चौथे दिन जारी, काली पट्टी बांधकर गोत्री अस्पताल के परिसर में आयोजित की रैली। महाराष्ट्रीयन समाज में खंडोबा भगवान की माता माल साकांत के साथ आज हुई शादी, समाज के लोग बड़ी तादाद में रहे उपस्थित। देश, दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर कल फिर लौटेंगे। तब तक दीजिए BRG टीम को इजाजत। धन्यवाद। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।